students, yesterday we have discussed about atoms, molecules, combination of atom so that bond formation takes place between the atom. We have also discussed about the types of bond formed. The first type of bond is formed by transfer of electron from one atom to another. Second type of bond is formed by sharing of electrons by both the atoms or all the atoms. And third type of bond is formed by donation of electron from one atom and sharing by both the atoms. So these three types of bonds are formed. They are named as the bond formed by transfer of electron is termed as ionic bond, also termed as electrovalent bond. Ionic or electrovalent means the same meaning. Second bond, which is formed by sharing of electron, is termed as covalent bond. And third, which is formed by donation of electron from one atom and sharing by both the atom. This bond is called as coordinate bond. Coordinate bond is also termed as dative bond. So now we will discuss about the formation of these different types of bond, how these bonds are formed. So first of all, we will discuss about the formation of ionic or electrovalent bond. The concept of this bond was given by Ozell in 1916. He observed that if transfer of electron takes place from one atom to other atom, it was observed that some charges will develop on the atoms. So if the atom loses its electron, in that case it will develop positive charge, and that type of ion is named as cation. Secondly, if the atom is able to gain the electron, in that case it will develop negative charge, and the ion formed is termed as anion. Now these two positively charged ions undergo force of attraction. This force of attraction between a positively charged ion, that is positive and negative, this force of attraction is termed as electrostatic force of attraction. It is called as electrostatic force, and this force of attraction is strong in case of ionic compound. Because of this strong electrostatic force, ionic compound exhibit various different properties. We will also study about these properties. Firstly, we will discuss about formation of ionic compound by loss and gain of electron. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर माइंड में अराइज होता है, व्हाई द एटम अंडरगो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Atom undergo loss or gain of electron to acquire stable noble gas configuration. कोई भी स्पेसिस है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या लूज करता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल. और स्टेबिलिटी कब आएगी, जब स्पेसिस के पास कॉन्फ़िगरेशन कैसी आएगी, नोबल गैसेस की, लाइक 2, 2, 8 एंड सो ऑन. यानी कि आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर क्या होगी, कम्प्लीटली फिल्ड. द स्पेसिस after acquiring this configuration neither gain nor lose electron. So first of all we will discuss about compound formed by combination of sodium and chlorine. Atomic number of sodium is 11, atomic number of chlorine is 17. Next step is the configuration. The electronic configuration of sodium is 281. This one is called as valence electron, and the configuration of chlorine is 287. Here valence electrons are 7 in number. So represent these electrons by क्रॉस और डॉट. दोनों एटम्स डिफरेंट है, तो एक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड एटम के लिए उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उनको हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर. सो दिस सोडियम बाय लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल नोबल गैस, and this chlorine by taking off or by intake of this electron or by gain of this one electron becomes stable noble gas 288. By gain of electron this Cl will become Cl negative and have now 18 electron. By loss of electron this sodium which have 11 electrons in the shell will now have 10 electrons in the shell, therefore it is also
again stable. So it will undergo transfer of this electron. To acquire stability, sodium loses electron and chlorine undergo gain of the same electron. So this process is termed as transfer of electron. When electrons are transferred from one atom to other atom, the atom which loses or which transfer electron will acquire positive charge, and the spaces which take that electron or gain electron will acquire negative charge. Now these two positively charged ions undergo some force of attraction. That force of attraction is called as electrostatic force, and these two spaces come closer, resulting in formation of compound. This compound is said to be ionic in nature, and the bond is said to be ionic bond, also called as electrovalent bond. Ionic bond is formed by combination of two atoms. Out of this, one atom is metallic in nature and other metal is other atom is नॉन मेटेलिक इन नेचर. जो फर्स्ट स्पीसीज हम यहाँ पर लेंगे मेटेलिक होगा, सेकेंड स्पीसीज कैसा होगा, नॉन मेटेलिक. इट विल अंडरगो लॉस and it will undergo gain of electron. So the bond formed is called as ionic bond. Second is, what are the conditions favorable for the formation of ionic bond? ionic bond की formation के लिए कौन कौन सी conditions favorable होती है, उससे पहले एक point करेंगे इसके अंदर, वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी. वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी. In both the cases, suppose we have studied about sodium and chlorine. This ion is called as sodium ion and this ion is called as chloride ion. Now the charge represent the valency और electrovalency of the atom. जिस भी atom के ऊपर जितना भी charge present होगा, that charge is showing the respective valency or the electrovalency of that respective atom. Now how we will represent the atoms? These atoms were represented by Lewis dot structure. जो भी हमारे पास एटम्स हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. इस डॉट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पेसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, गेन होगा या शेयरिंग होगी या फिर डोनेशन होगा. ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले किसी भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है. कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम फाइंड आउट करेंगे उसी स्पेसिस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. सो बाय ऑब्टेनिंग दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी कैन रिप्रेजेंट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटम. सपोज वी हैव boron, atomic number of boron is 5, so the configuration of boron is 2 3, outermost shell 3 electrons, so valence electrons are 3. Therefore the electron dot structure of boron is like this. इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस तरह से शो करना है. सपोज हमारे पास ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज़ 8, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 6. नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6. इसको हम पेयर में शो करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. इस तरह से हम किसी भी स्पेसिस के लिए उसके रिस्पेक्टिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में शो कर सकते हैं. दिस फिनोमिना वाज गिवन बाय लुईस, हैंस दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर. यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं Na के लिए और Cl के लिए, ये भी कौन से स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम डॉट से भी शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं. सो द फर्स्ट कंडीशन इज लो आयोनाइजेशन एनर्जी. जो भी हमारे पास स्पेसिस प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट हैं, दे विल एग्जिबिट लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन्स विल बी लूजली पैक. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की पैकिंग कैसे होगी, लूजली पैक. सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वो एटम उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए क्या करेगा, रिमूव करेगा. रिमूवल का मतलब क्या है, दैट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड. वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे एटम के पास. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द एटम शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मेनली हम यहाँ पर क्या लेंगे, मेटल्स ऑफ
ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। हमारे पास टोटल प्रोडक्ट टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उसमें से जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है और ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स हैं, दे एग्जिबिट लो आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी शोज वेरिएशन। क्लियर। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में हमारे पास आ जाएंगे अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 में हम कंसिडर करेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स सच एज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा। तो इन एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है दैट इज़ लो, देयरफॉर दे अंडरगो इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली ट्रांसफर्ड, सो दे इजीली फॉर्म कैटायन एंड बिकम स्टेबल एंड हैव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सेकेंड फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, high electron affinity. This property was shown by the second atom named as non-metals। क्योंकि हमने जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की है यहाँ पर फर्स्ट पेज हमने लिया है मेटल, तो मेटल के लिए हम क्या लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड एलिमेंट या मेटल क्या है हमारा एटम क्या है नॉन मेटल, तो इसके लिए हम क्या लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस प्रॉपर्टी वाज गिवन बाय नॉन मेटल्स विच फर्निश टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव एनाइंस। कैसे फॉर्म करेंगे बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वर लूज बाय द मेटल्स। सो इन दिस केस वी विल टेक एग्जांपल्स ऑफ स्पेसेस लाइक हैलोजेंस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 और कैल्कोजेंस ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस में आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, और जो कैल्कोजेंस हैं इनको बोलते हैं ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। कैल्कोजन का मीनिंग क्या होता है ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स, यानी कि जो स्पेसिस ओर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मिनरल होता है एक वर्ड, एक होता है ओर का मतलब क्या है जिस मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कॉन्वीनियंटली, दैट स्पेसिस इज टर्म्ड एज ओर। और हैलोजेंस में हमारे पास क्या आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है द कंपाउंड और द एलिमेंट्स विच अंडरगो साल्ट फॉर्मेशन, जिनकी वजह से साल्ट कंपाउंड बनते हैं, साल्ट फॉर्मेशन होती है, सच टाइप ऑफ स्पेसिस आर नेम्ड एज हैलोजेंस। सेकेंड है कैल्कोजेंस, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। These elements are named as chalcogens. And the third factor is high lattice energy. Third factor is high lattice energy. What is lattice energy? It is the amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed. When 1 mole of ionic compound or ionic substance is formed, किससे फॉर्म होगा? From the respective ions इन द गैशियस स्टेट। हमारे पास कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे तो उन आयंस को हम कंबाइन करवाएंगे ताकि हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो सके आयोनिक कंपाउंड की। तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। अगर वो एनर्जी हाई है इट मीन्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा है। क्लियर है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी आयोनिक बॉन्ड जल्दी बनेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हाई है तो बॉन्ड फॉर्मेशन फास्ट होगी। और थर्ड है लैटिस एनर्जी, इफ लैटिस एनर्जी इज हाई इन दैट केस आल्सो ionic bond will be formed.